What is the political space? It is again a very important and interesting question. ये term जो है वो बहुत important है. This term you have to understand. Again, you have to learn the vocabulary of the political geography, so you feel very convenient and confidence when you are taking the question. Political space exists at multiple scale. May be very small. Say, for example, your house where you took the decision, you manage the household affairs. Within the house, there are different rooms, and among that, there is a room for the kids also. That is a small political space. Yesterday, I had discussed from the kids' bedroom to the entire planet. What does it mean? It is the space where the people took decision, manage it, control it. Okay. So the scale of the size of this political space, it may vary. It may be your house, it may be a room where the people live. Even the kids' room is one political space where he is managing the things, where he is taking the decision. He is governing and administrating the things there, arranging the things. Okay. Allowing the people to enter. That is the playground, means where he performs various functions. So that is a political space, the kids' bedroom. And the largest political space, the largest geographical area, that is the entire planet Earth, is another political space which is vast in nature, the vast in scale. So what I have mentioned here, that exist at multiple scale. What? The political space. So political space may be very small or it may be a large entity. So entire planet may be a political space, or the kids' bedroom may be a political space also. A house is also a political space. Here I had mentioned at each location, somebody or some group seeks to establish the rules governing what happens in that space and how power is shared or not, and who even has the right to access those spaces, and this is also known as territoriality. Now what happened, whether it is the entire planet or it's a kid's room or it's a one geographical area, say for example when we talk about one geographical area or entity, okay, whatever be this geographical area, this political space, what we called it, political space. This political space having different scale, means the sizes. In this political space, somebody or some group what seeks to establish the rules. What does it means? यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग या group of people, okay, somebody, it may be an individual person or it may be a group of people. It may be a group of people. Try to understand. अगर आप इसे देखेंगे तो what you find that, आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें, that just a minute.
that these people, whether a single person or a group of people, are making the rules to govern this region. Making rules to govern this region. Here, rules for governing this region. What happens in that space? They also decided what affairs will take place here. क्या चीजें होंगी यहाँ, ये वही डिसाइड करते हैं. How power is shared. अबे when you look at the India after independence, when you look at and learn the history of India, the India having not the present status, इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस नहीं था. ओके, तो बेसिकली व्हेन यू लुक एट, अगर आप देखेंगे इसको, तो इंडिया में जो नंबर ऑफ स्टेट्स आज हैं उतने नहीं थे. यानी इंडिया का जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है वो तो वही है जो आपको मैप के ऊपर दिखता है, बट जो इंटरनल टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाई गई, जिसे आप प्रोविंसेस या स्टेट कहते हो, तो वो नंबर ऑफ प्रोविंस डिफरेंट थे, आज जितने हैं नहीं. और उसमें भी कैटेगराइजेशन था. कैटेगराइजेशन था स्मॉलर स्टेट, लार्जर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज. Number of union territories are different. Why? Because the political scenario through which we evolve and develop our countries during that period of time is different. वो अलग था. तो यहाँ क्या है, क्या मैंने कहा कि जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि कैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी डेवलप हुआ और कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इवॉल्व हुआ, तो आप देखते हो कि जो ज्योग्राफिकल स्पेस है, ये ज्योग्राफिकल स्पेस को गवर्न करते हैं कुछ लोग कई बार, और कई बार ग्रुप ऑफ पीपल, और समटाइम्स सम इंडिविजुअल, समबडी इज गवर्निंग, मेकिंग द रूल्स टू कंट्रोल द अफेयर्स. ही डिसाइडेड that what kind of affairs is going on. They also decided about sharing the power. तो हो सकता है ये ज्योग्राफिकल एंटिटी बीच में फिर ये डिवाइडेड हो और पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकते, पावर को डिवाइड कर सकते. इट इज डिसाइडेड बाय इधर समबडी और अ ग्रुप ऑफ पीपल. आपने सुना होगा एक फॉर्म है ओलिगार्की. ओलिगार्की जैसे आपने सुना होगा मोनार्की. मोनार्क मीन्स किंग. तो इन मोनार्की इंडिविजुअल टुक द डिसीजन, द किंग टुक द डिसीजन. ही इज पावरफुल. In oligarchy, oligo means few. Here a group of people decide. Group of people govern the region. It is a different form. आपने ऑटोक्रेसी के बारे में भी सुना होगा. You might have learned about autocracy. ठीक है, तो क्या है ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की? तो मैंने क्या कहा कि द पर्सन डिसाइडेड, इट मे बी एन इंडिविजुअल हु डिसाइडेड कि हाउ द पावर विल डिस्ट्रीब्यूटेड. व्हेन द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स वी कॉल्ड इट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. बट समटाइम्स एज यू नो, कई बार ये मोनार्क सारे पावर अपने हाथ में ही रखता है. कई बार ये ग्रुप ऑफ पीपल पूरी की पूरी शक्ति अपने पास ही रखते हैं. ते क्या बोलते हैं, ठीक है, ते कहते हैं व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर.
What we observe, centralization as well as decentralization. हम इसमें क्या देखेंगे when we are learning the concept of nation, कि कई बार नेशन में जो अथॉरिटी है वो अपने पावर को अपने हाथ में अकेला रखता है, सेंट्रलाइज करता है, या कई बार वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने पावर को, डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, पॉलिटिकल स्पेस। पॉलिटिकल स्पेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके स्केल डिफरेंट होते हैं। कितना छोटा हो सकता है, हाउ मच स्मॉल इट मे बी, इट मे बी इक्वल टू अ रूम इन अ हाउस। एग्जाम्पल दिया, किड्स रूम, because there in that room the kids decided, or it's the parent of the kids decided who will enter, what affair is going on, okay, how this room has been managed, where the things has been put, okay, everything is decided by the kids or their families, that is the parents. The political space may be quite vast. The entire earth is also a political space. It is a very huge area, a vast area. Okay. In that political space, अब ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है who is controlling the entire earth. Okay. In the modern history or in the medieval or in the ancient, don't found the mentioning of any ruler who control. Yes, majority of the part, जैसे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुन, बट उस वो भी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए. But this entire planet Earth is a political space. Try to understand. Now this political space is divided into different pieces. वो कई टुकड़ों में डिवाइड होता है. That is also a political space. Now when we talk about North America, the North American piece of land is divided into different countries. The Canada, US, Mexico, and they have their own territory. मैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी के बारे में बता रहा हूँ. ये टेरिटोरियलिटी क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर? तो मैंने कहा कि एट ईच लोकेशन समबडी और सम ग्रुप सीक्स टू एस्टैब्लिश अ रूल गवर्निंग व्हाट हैपन इन दैट स्पेस and how power is shared or not, or who even has the right to access those space. This is known as territoriality. So when we talk about in Asia, the India is existing, no? And as you know that India having their own space, in that space there is a structure who will govern and head that political space. Okay, as you know, the government is elected by the people. Okay, the government is elected by the people. Now when you look at in this political space, this is again a political space. The entire world known this political space as India, that is Bharat. This political space is governed by few people, elected by the people of this territory, because it is not a barren territory. Here the people are living. Now, so here some body or some group establish the rules.
So here the rules has been written. There are two type of rules, constitutional rules. हम कहते हैं constitutional laws. Under that we govern the countries. And apart from that, constitutional laws, ordinary laws are also there. So there are two type of laws which is framed by the people of this territory to govern this region. To govern this region. Okay. Now, when you look at, and as you know, there are various administrative units also. And to manage that administrative unit, there is a rule. There is a different office circulars has been passed. So what I have said that in any political space, जब हम बात करते हैं political science में any political space, तो उसको गवर्न करने के लिए कुछ लोग होते हैं या सिंगल अथॉरिटी के अंदर हो सकता है, एक राजा भी इसका को कंट्रोल कर सकते हैं या एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. वो रूल्स बनाते हैं. रूल्स क्यों बनाना जरूरी है? गवर्न करने के लिए. वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या अफेयर्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किसको अलाउ करेंगे, किसको नहीं अलाउ करेंगे, who even has the right to access those spaces. Recently, what you have heard that due to a problem which is created with the Canadian governments, the India has restricted the visas. उसने तुरंत वीजा जो है देना कैनेडियंस को क्या कर दिया? रोक दिया. What does it mean? Means the person, those who are governing or administrating these areas, having right that they may allow who even has the right to access those spaces. इस पॉलिटिकल स्पेस के अंदर कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये भी डिसाइड करने का पावर एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. और अगर ऐसा होता है, इसी को टेरिटोरियलिटी कहते हैं. मीन्स इन दिस टेरिटोरियल बाउंड्रीज, okay, there is a separate governing system. This governing system run by few people, and in case of India, that people, those who are governing this territorial area, is elected by the common man of this region, having, according to rules, a specific age, the age of 18 and above, okay, as you know, can cast their vote and elect the person. Now, this is territoriality in political science, in political geography. So, what I am going to discuss with people, what is the concept of nation? And in general, this is the topic you must learn in even general studies. That's why I had offered the GS candidate listen this. Okay, it may be beneficial. Apart from that, it is help you to write a good essay. Some essay is based on political concepts, some essay which is based on governance. So it may be help you to understand that also. Now, अगर आप देखेंगे the next part, here I had mentioned, when you look at the history of the planet Earth, and when you look at how the political geography grow and how the polity and the political science has a different streams evolve, and how the issues of governance evolve, then what you observe that many people have tried to exert control over the physical world, to exert power for religious, economic and cultural reasons. अब मैंने कल थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी कि कैसे इवॉल्व हुआ. मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन एज अ स्पीसीज,
ऐसा तो है नहीं ना कि मैन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मैन की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, और मॉडर्न मैन की तो और भी नहीं है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 10,000 साल की हिस्ट्री को, अगर आप देखते हो, तो आप क्या महसूस करते हो? जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी फेज को पढ़ेंगे तो इंसान यानी जो मॉडर्न मैन है, वी एज अ होमो सेपियंस सेपियंस, इस स्पीसीज के पहले और कई स्पीसीज आई, और अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइंस मैन इवॉल्व फ्रॉम द मंकी और द एप लाइक मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिक एप लाइक मैन, और कई ऐसे बीच में आए। ठीक है ना, पेकिंग मैन, जावा मैन, होमो हैबिलिस, निएंडरथैलस, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियन सैपियंस। तो देयर आर सो मेनी। तो ऐसे इवोल्यूशन। अब जब मैन का इवोल्यूशन हुआ, तो अर्ली मैन वाज नोमैडिक्स। यस्टरडे आई हैड डिस्कस, अर्ली मैन वाज नोमैडिक, वो घूमता रहता था, कुछ भी मिल गया खा लिया। ये अर्थ जो है वो कोई पॉलिटिकल एंटिटी में, टेरिटरी में डिवाइडेड नहीं था। अब ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा अफ्रीकन वैलीज में इवॉल्व हुआ मैन, फिर उसके बाद वेव निकली, कई जगह पर ये मूव करते हुए गए। कुछ कुछ आप देखेंगे इवोल्यूशनरी जो एविडेंसेस हैं, कंकाल जो मिले हैं, हड्डियां जो मिली हैं, वो कुछ शिवालिक हिल्स में भी मिली हैं, इंडिया में भी मिली हैं, चाइना में भी, यूरोप में भी। तो क्या हुआ कि उस समय कोई ऐसा पॉलिटिकल एंटिटी नहीं था, मैन इवॉल्व हुआ, मूव करने लगा, जो मिला खाया। वो कोई ऐसा कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, कोई ऐसा रिलीजन नहीं था, आप उसे आदि मानव के तौर पे जानते हो। ग्रेजुअली व्हेन एज आई हैव सीड, तो वो जो इंसान है जो कि घूमता था, जो नोमैडिक था, ठीक है, आप हिस्ट्री में पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ोगे तो उसमें उसके बारे में मेंशन होगा कि वो गैदरर्स हैं, वो हंटर्स हैं। धीरे धीरे जब और इवोल्यूशन हुआ, मैन हैज स्टार्टेड यूजिंग हिज क्रैनियल कैपेसिटी, और उसने अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसने कुछ चीजें इन्वेंट की, डिस्कवर किया। जैसे आप पढ़ते पढ़ते हो, व्हील, फायर, प्लॉशेयर, ओके, लाइक दैट। एंड द मैन ऑल्सो स्टार्टेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार कि जब मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सीड्स लगा दोगे और फिर उसके बाद चले जाओगे, फिर आओगे तो फिर हार्वेस्ट कर लोगे, बचेगा ही नहीं, एनिमल्स खा जाएंगे। तो जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो लैंड्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता होने लगती है। लगाया, उसको देखना है, इरिगेट करना है, ठीक है ना, उसमें घास उग गए हटाने हैं। So there are so many activities which is involved. So people started settling near the farmland. So a small settlements has been developed. अब एक दो ऐसा सेटलमेंट दिखाई देने लगा, फिर कुछ किलोमीटर बाद एक दो ऐसे सेटलमेंट, आप कहते हो उसको हैमलेटेड सेट जोग्राफी। तो हैमलेट्स डेवलप होने, a small settlement started growing in a different geographical area, means people started settling. अब देखो, एक क्या हुआ, एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, उस एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर कहते। अब एग्रीकल्चर का बहुत महत्व होने लगा, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल द पीपल ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टेड एग्रीकल्चर। अभी भी नोमैडिक्स हैं, अभी भी हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं,
बट कुछ लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आप देखोगे कुछ रिचुअल से स्टार्ट हो गई कि डेड बॉडीज को दफनाने लगे, आसपास पत्थर रखने लगे, जो चीजें वो यूज करते थे वो उन चीजों को भी उन लोगों के बगल में ही रखा गया। कई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो उनके पेट है, पालतू जानवर है, उसको भी साथ में दफनाया गया। when you learn the history, when you read the history, you learn all the. Now the rituals begins, the customs begins, and a specific culture evolve in different part of the world. Different rituals practiced by the people, so new custom, new culture evolve. The people started, when the people started living together, they started communicating with each other, so different languages evolved, and the people started conversing, communicating their ideas. अब देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, द प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन बिगिंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ग्रेजुअली इवॉल्व, a small social structure develop, फैमिली बन गया। अब क्या था, पहले अकेले घूमते रहते थे, फिर द कपल्स बिगिंस, प्रोक्रिएशन स्टार्ट, फिर बच्चे आ गए, फिर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, और ऐसे ऐसे एक समाज का निर्माण होने लगा, सोसाइटी डेवलप हो गई। अब लोगों की चिंता बढ़ने लगी, कैसे फैमिली को फीड करें, कैसे अपने लैंड को बचाएं, टेरिटोरियल डिमार्केशन बिगिन, ए स्मॉल टेरिटोरियल डिमार्केशन बिगिंस, ये मेरा एरिया है, ये मेरा लैंड है, मुझे अपने फैमिली को फीड करना है। नाउ दैट दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ स्पेस, देयर ओन स्पेसेस। अब देखो, अब उसमें कुछ लोग ऐसे हो गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए बाहर से, जैसे जंगली जानवरों का अटैक है या ऐसे जानवरों का भी अटैक है जो फसल को बर्बाद करें, तो दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग दैट एरिया। बट ग्रेजुअली अब क्या हुआ कि यू स्टार्टेड ग्रोइंग योर एरिया, पता चला बगल का इंसान है, देखा कि अरे ये एरिया ग्रो कर रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अटैक किया, तुम्हारे एरिया को तुमसे छीन। So now the tussle begins. Why the conflict begins among the people? For the economic purpose. Many people try to exert control over the physical world. Okay. They try to grab your territory, your land. Few people. Why? For economic purpose. तुमने वो एरिया डेवलप किया, ग्रो किया, सारे चीजें धीरे धीरे वहां लेकर आए, मुझे लगा अरे मैंने ग्रुप बनाया, अटैक किया, कंट्रोल। सो पीपल टू पीपल conflict also begins. In the history you learn several wars for the economic purposes, to secure the resources. The war between the people or the conflict between the people is not only for the economic reason, but here, as I have mentioned, also for religion. अब देखो, एक what is religion? A way of life. When a community of a people develop, their way of life is similar somewhere. They started, as I have said, the rituals. Now a specific culture and religion evolve, and sometimes the people are very intolerant towards other way of life. So what we observe that in the history there was a history of war for the religious causes. मैंने एग्जाम्पल दिया था the crusade, the Christianity and Islam having the war to for their authority in a specific geographical political space. ठीक है, तो क्या हुआ, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट के भी आप हिस्ट्री देखोगे, कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स के भी हिस्ट्री देखोगे, नॉट ओनली द कन्फ्लिक्ट
or the many people want try to control a physical world only for economic reason, but also for religious and now the recent conflict between the Israel and Palestine, okay, or Lebanon, Israel and Lebanon, is not only for the economic purpose, but the religious and cultural factor is also right from the 1948 when the Israel exists. Okay, तो इस तरह से आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल स्पेस है वो गवर्न किया जाता है लोगों के द्वारा, और वह पॉलिटिकल स्पेस जो है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश कुछ लोग करते हैं, और ऐसी कंडीशंस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर होते हैं। अब क्या हुआ कि जो पावरफुल है वो क्या करेगा, वो अपने एडजेसेंट टेरिटरी को इनगल्फ कर लेगा और अपनी टेरिटरी के साइज को बड़ा कर लेगा। अब देखिए पावरफुल क्या करता है, व्हाट द अशोका द ग्रेट डिड, व्हाट द अलेक्जेंडर द ग्रेट डिड, ओके, नेपोलियन द बोनापार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। ये कुछ वर्ल्ड में द ग्रेट लगाए जाते हैं, नहीं, अभी क्या किया, सब्जुगेट कर दिया, जीत लिया, कॉन्कर्ड किया अपनी पावर की बदौलत, शक्ति की बदौलत, अपने टैक्टिस, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। तो तुम क्या देखते हो, पहले क्या ऐसा मानते थे पॉलिटिकल थ्योरी में, पहले ये मानते थे कि ये जो है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट रैडजल ने दिया, रैडजल अ थिंकर, what he came up with a concept of Lebensraum. Lebensraum means living entity. He said that the state or a geographical area, अभी मैं स्टेट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, मैं वही कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं, नहीं तो उसने कहा कि ये जो स्टेट होते हैं इट इज ऑर्गेनिक, लेबेंसरम का कॉन्सेप्ट, ये लिविंग एंटिटी है, ये बढ़ सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं, may expand, may grow as like the human being. And in political geography a new theory has evolved, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी। The human beings bodies are made up of organic molecules, protein, carbohydrate, fats, vitamins, ठीक है, DNA, RNA, अगर आप देखेंगे इनसे बना है इंसानों का शरीर, जानवरों का शरीर। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन इज इन द सेंटर, उसमें आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसने एक नई थ्योरी आ गई पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ऑर्गेनिक थ्योरी। क्या दिखाई दे दिया, अच्छा ये भी बढ़ता है, अब इसने एक नई सोच पैदा कर दी, क्यों ना अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाएं। Those who are powerful having ability to control the new region. It is organic in nature, it is living. Okay, it is not non-living. पहले आप क्या कहते थे, what is the, in biology, what is the difference between living and non-living? Living can grow, living can reproduce, okay, non-living cannot. Land is this physical territory is a non-living entity in biology. But in political geography, as the concept of organic theory begins, as the Radical came up with a new idea of Lebensraum, a new concept evolved, and this concept is taken in geography from biology. लिविंग का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल किया,
और क्या बता दिया कि लैंड जो है नॉन लिविंग नहीं, ये लिविंग एंटिटी है। ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, जो स्टेट कहते हो, स्टेट के फीचर बताऊंगा, कंपोनेंट, ये लिविंग एंटिटी। थिंकर्स की राइटिंग कैसे इन्फ्लुएंस करती है हजारों लाखों लोगों, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो इन्फ्लुएंस। अब इससे क्या होगा, इससे वो एडमिनिस्ट्रेटर के माइंड में आएगा, अच्छा मुझे भी अपनी टेरिटरी बढ़ानी चाहिए, ये तो बढ़ ही सकती है। So the mighty power started controlling the other areas. They started expanding their territories. Okay. So world across, when you learn the history, there is a history of conflict. Expansions के कारण, ठीक है? Try to understand. I had mentioned that in late 1800 to early 1900, scholars developed many theories about how political power is expressed geographically, and this theory have been used to both justify and work to avoid conflict. तो conflict बढ़ गया टेरिटोरियल पावर को बढ़ाने के लिए। तो 1800 से लेकर 1900 के बीच में कई सारी थ्योरीज आई पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर, जो वो बताती हैं कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को, कौन पावरफुल हो सकता है, वो इस थ्योरीज में आती हैं। यहां आई हैड मेंशन 3 डिफरेंट थ्योरी: ऑर्गेनिक, हार्टलैंड एंड रीमलैंड। नाउ देयर इज नो नीड टू गो वेरी डीप। दोज हु आर द GS student, geography student has to learn deeply this theory. Now yesterday I had discussed about organic theory. Let's understand the basics of organic theory. ऑर्गेनिक का मतलब क्या बताया मैंने कि ऑर्गेनिक का मतलब अगर देखेंगे इन अ लेमैन टर्म और ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, it means living. So organic theory states that nation must continually seek nourishment. And how the livings can grow? How a living can grow? The smallest unit in biology you learn about cell. Cell is the structural and functional unit of life. This is the smallest living entity. No. But these cells having capacity to multiply. You might have heard about the cell division process. Meiosis and mitosis is a cell division process. आपने पढ़ा होगा। पर सेल को डिवाइड करने के लिए मियोटिकली और माइटोटिकली, बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूं, सिंपली सेल के मल्टीप्लिकेशन के में एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी कैसे मिलेगा सेल को? नरिशमेंट के थ्रू। आप खाना क्यों खाते हैं? आपको पोषक तत्व क्यों चाहिए और आपको पोषण क्यों चाहिए? Why you need a nutrient or nutrition? क्योंकि आपको दिन भर एक्टिव रहना, आपको काम करना, आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए। वो एनर्जी आप में सेल्फ इवॉल्व या डेवलप नहीं होगी, आप सेल्फ क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसी कैपेसिटी नेचर ने कुछ खास ही स्पीसीज को दे रखा है। उसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, उसमें कुछ और एनिमल हैं लाइक यूग्लिना, उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उनके सेल में, जो सोलर रेज और रेडिएशन से अपनी फूड्स बना लेते हैं। वो कैपेसिटी जो है इंसानों में नहीं है। आपको पोषण चाहिए, उससे आप एक्टिव रहते हो, अपने डेली अफेयर्स कोर्स कर सकते हो। इसी तरह सेल को भी नरिशमेंट, आपकी बॉडी कई हजार सेलों से, कई करोड़ सेलों से बनी हुई है और हर एक सेल्स को पोषण चाहिए।
आपका और मेरा ग्रोथ एक एग से हुआ, एक एग का जिसका फ्यूजन स्पर्म के साथ हुआ, उसी एग के ग्रोथ से इस पूरे बॉडी का निर्माण हुआ। अब उसकी लेंथ वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसी तरह से द जायंट स्पीसीज लाइक व्हेल और द जायंट स्पीसीज लाइक एलिफेंट आल्सो ग्रो। कैसे? नरिशमेंट। उसी तरह से एवरी लिविंग्स नीड नरिशमेंट। उनको पोषण चाहिए। पोषण किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Try to understand how the thinkers connect various subjects and use different concept in a different subject. बायोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में अप्लाई। अब समझिए, तो पहले के थिंकर्स का इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, इसीलिए कई हजार सालों से, सैकड़ों सालों से आप कई सारे थिंकर्स को पढ़ते हो कि उनके विजन्स जो हैं बियॉन्ड द टाइम्स। अब आप देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए। उसी तरह से यहां लिखा है ऑर्गेनिक थ्योरी स्टेट दैट नेशंस आल्सो। अभी मैं नेशन भी डिफाइन करूंगा कि नेशन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं अभी का बैकग्राउंड। So in the organic theory, the theorist stated that the nation must continually nourishment in the form of gaining land to survive in the same way that the living organism seeks nourishment from the food to survive. बोला ये नेशन है, ये कंटिन्यूली नरिश चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गेनिंग लैंड। अगर ये नेशन है, व्हाट इज द फीचर ऑफ नेशन आई विल डिस्कस, सो वेट। अब कहा ये नेशन को भी नरिशमेंट चाहिए, क्या इसमें इसको थोड़ा और गेन चाहिए। गेन किस चीज का? लैंड का। कुछ और लैंड इसमें ऐड होना चाहिए, तो ही ये नेशन क्या करेगा। जैसे लिविंग ग्रो और डेवलप करता है, ये ग्रो और डेवलप करेगा इन द सेम फैशन। विच थ्योरी इज बिलीव इन दिस? ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी कहता है ये नेशन भी एज लाइक लिविंग ग्रो कर सकता है। जैसे लिविंग को न्यूट्रिएंट और नरिशमेंट चाहिए, इसको भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लैंड। इसका भोजन लैंड है, बगल के एडजेसेंट लैंड को वो कैप्चर करता हुआ ये ग्रो करेगा अपनी साइज को। ठीक है। As a result, it implies that if a nation doesn't stick out and conquer new territories, it will risk failing because other nation also behave organically. बोला अगर ये नेशन नहीं ग्रो करेगा तो इसके एडजेसेंट नेशन में भी वही बिहेवियर है, इसको भी नरिशमेंट चाहिए। इसके एडजेसेंट में ये ट्रैप हो जाएगा, ये इसको कब्जा कर लेगा, ये ग्रो कर जाएगा, ये नहीं। So what the organic theory stated that if one nation is not able to grow, the another nation is also organic and he may grow and occupies that region. अब एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया वर्ल्ड अफेयर्स में। अब जितने मोनार्क थे उनको ये लगने लगा, और जितने रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, कि अरे मैं अगर अपनी टेरिटरी को नहीं बढ़ाऊं तो हो सकता है मुझे सब्जुगेट कर लो। एक नई टेंशन शुरू हो गई ना दिमाग में, माइंड में। क्या करें उसके लिए? दो तरीका है, या तो आप एडजेसेंट लैंड को सब्जुगेट करो तो जीत लो, या एक तरीका है अगर वीक हो तो कई छोटे छोटे देश मिलकर एक ग्रुप बनाओ और फाइट करो। दो तरीके। अब वहीं से नई जियोपॉलिटिक्स से स्टार्ट हो गई। ऑर्गेनिक थ्योरी आने के बाद नई कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया कि टेरिटरी को ग्रो करना होगा, अदरवाइज जो पावरफुल है वो हमें ले लेगा। पावरफुल या तो अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपनी
लैंड की टेरिटरीज को इंक्रीज करो, और यहीं से फिर कॉन्सेप्ट इवॉल्व होते चले गए स्टैंडिंग आर्मी का। राजाओं ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी, अपने नाइट्स वो डेवलप करना शुरू, अपनी टेरिटरी को ग्रो करना शुरू। द वीक रूलर से स्टार्टेड मेकिंग अ ग्रुप, तो ऐसे कई ग्रुप्स डेवलप होने लगे, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। ठीक है, तो देखो एक थ्योरी ने कैसे जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। दिस इज अकीन टू द लॉ ऑफ द जंगल, ईट टू बी ईटन। मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक थ्योरीज किस पे डिपेंड करता है, जंगल या तो आपको खा जाएगा या तो आप जंगल खा लिया जाएगा। यहां क्या लिखा, द लॉ ऑफ द जंगल, ईट और बी ईटन। अगर आप जंगल से डरोगे, जंगल आपको निगल जाएगा। द एंशिएंट पीरियड, द पीपल आर डिटर्मिनिस्टिक। ज्योग्राफी में एक फिलॉसफी आएगी, नेचर को पावरफुल मानते थे, डरते थे लोग। भी नई थ्योरी आ गई मॉडर्न टाइम में, और वो कहता है द लॉ ऑफ द जंगल, ईट और बी ईटन। दिस इज द ऑर्गेनिक थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये एक लाइन भी याद है तो आप लिख सकते हैं। या तो अपनी पावर को इतना बढ़ा लो कि यू कैन कंट्रोल द जंगल, अदरवाइज द जंगल विल ईट। या तो अपनी शक्ति बढ़ा लो कि आप बगल के लैंड को कब्जा कर लो, अपनी टेरिटरी बढ़ा लो, अदरवाइज द जंगल विल ईट, एडजेसेंट रीजन आपको खा जाएगा। So this theory is evolved in the political geography. We called it organic theory. हम उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। अब इसका प्रभाव कई सारे लोगों पर पड़ा कंटेम्प्रेरी पीरियड में, और अभी भी कई लोग इसको बिलीव करते हैं। हिटलर वॉज वन ऑफ द पर्सन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपने नाजिज्म के बारे में सुना होगा या पढ़ेंगे आगे वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिटलर वॉज प्रोपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी। उसने क्या समझाने की कोशिश की, जर्मन सिटीजन्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों को। बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फेट जानते हो ना, हम डिफीट हुए थे, आप कमजोर थे, आप डिफीट हो गए, आपके टुकड़े कर दिए लोगों ने। इस तरह रेज किया मास को, अगर फिर कमजोर पड़ोगे फिर दुनिया तुम्हें टुकड़ों में बांट देगी। तो वो ही वॉज अ आर्डेंट बिलीवर of the organic theory, and he also a proponent of organic theory and used the Radgel's term Lebensraum, that is the living space, the living entity। और उसने क्या किया, ठीक है, यूज किया रैडजेल के टर्म लेबेंसरम को, लिविंग स्पेस को, एज जस्टिफिकेशन फॉर जर्मन्स बिहेवियर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। बोला कि मुझे, मेरी मजबूरी, आई हैव टू एग्रेसिवली विन द यूरोपियंस adjacent area, otherwise these powers will subjugate us। और he raised the confidence among the mass, और इतना ज्यादा एंगर और गुस्सा भर दिया उसने लोगों के अंदर। he claimed that Germany did not grow in this way, it would fall victim again to the rest of the Europe and eventually the world as it did during the First World War। और उसने कहा क्या कि अगर हम इस तरह से एग्रेसिव नहीं बढ़े तो वर्ल्ड फिर हमें क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, सब्जुगेट कर लेगा, डिवाइड कर, अपने आप में बांट लेंगे, अपने तोड़ देंगे। तो व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, द थ्योरीज, द ओपिनियन ऑफ द थिंकर्स, एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ दिस थ्योरी ओवर अ ह्यूमंस, and how the leader of a specific time, highly influenced by theory, shows their aggression resulted into the second। देखो आइडियोलॉजी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वर्ल्ड वॉर हो गए,
उसी समय मुसोलिनी इन इटली ऑल्सो बिलीव इन दैट, फासिज्म पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, ऑर्गेनिक थ्योरी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रीमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरीज ये डेवलप हुए। अब जब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे नेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो और स्टेट क्या होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर, और नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, और फर्दर एक और वर्ड डेवलप हुआ, नेशन और स्टेट को ज्वाइंटली मिक्स कर देते हैं तो वर्ड बोलते हैं नेशन स्टेट। So what is the difference between all these three words? Nation, state, as well as nation state jointly. This is the topic. अब मैंने कहा कि इसका इवोल्यूशन अगर समझना है तो हायरार्कियल सिस्टम समझना हो, हायरार्कियल सिस्टम। And sometimes you observe 3 level of hierarchy, ठीक है। स्पेसिफिक रैंकिंग 3 लेवल पे देखेंगे। वन इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। डू यू हैव हर्ड अबाउट एनी इंटरनेशनल सिटी? ऐसा नहीं है, अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएन ऐसा कोई शहर है नहीं, किसी न किसी कंट्री के अंदर ही से। लेकिन जब आप इजराइल पैलेस्टाइन हिस्ट्री को पढ़ोगे तो उस समय एक डिस्कशन भी हुआ था। सबसे बड़ी लड़ाई जानते हो किस चीज के ऊपर थी? यरूशलेम के ऊपर। इट इज अ होली सिटी फॉर क्रिश्चियनिटी, फॉर जुडाइज्म एज वेल एज इस 3 बड़े रिलीजियस ग्रुप का ये कन्फ्लिक्ट है यहाँ इस जगह के ऊपर। और इसीलिए अभी भी आपको देखते होंगे कि यूएन का 1945 में जब एस्टैब्लिशमेंट होता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, one of the first tasks which is given to the UN to resolve the disputes after certain years, 1948, Israel established, and after the establishment of a Judaism state, a Jews dominant state within the Arab world, that is in Islamic realm, the Islamic realm won't accept it, accept nahi kiya. The tussle not only begins with the मिडिल ईस्ट पार, दैट इज द वेस्ट एशिया। केवल वेस्ट एशिया से इसराइल का टसल नहीं हुआ, इसराइल हैज कंट्रोल द सिनाई पेनिनसुला। जब आप इजिप्ट को देखेंगे, अफ्रीका में एक कंट्री है इजिप्ट, स्वेज कैनाल का नाम सुना होगा, उसके कंट्रोल में। तो अगर आप ये देखोगे इजिप्ट में यहाँ एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला इज द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। दैट पेनिनसुला इज नोन एज सिनाई पेनिनसुला। इसराइल हैज कंट्रोल्ड दैट। बाद में नेगोशिएशन हुआ इजिप्ट के साथ, आज सिनाई इजिप्ट का रीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कंट्री, यूज कंट्रीज, साथ में पूरा इस्लामिक रियाल, ये अरब वर्ल्ड है। और ये जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ भी इस्लामिक डोमिनेंट स्टेट, इनके बीच में ये जुडाइज्म यानी ज्यूज स्टेट है। तो इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। अब कहोगे कि अच्छा 48 में सारे दुनिया के यहूदी जो है वो वहां जाके क्यों सेटल्ड हो गए? अब उसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। एक तो ये जो शहर है, ये माना जाता है जुडाइज्म में कि यही बर्थ प्लेस है इस रिलीजन का, ज्यूज यहीं से ये धर्म इवॉल्व हुआ है। साथ ही साथ आप जानते हो कि इस्लाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जो हैं गॉड या अल्लाह से, उन्होंने जब बात की थी, स्वर्ग गए थे, तो वो यहीं पे रॉक है, वहीं आए। यानी मक्का मदीना के बाद 3rd होली प्लेस है, वहाँ एक मॉस्क भी।
और वहीं से वो गए स्वर्ग, बात की अल्लाह से, नीचे आए, उन्होंने ज़ियारत की और नमाज पढ़ा। तो वो एक होली प्लेस है इस्लाम के लिए भी। और मक्का मदीना जिस तरह से बहुत वहाँ लोग हज के लिए जाते हैं, होली प्लेसेस है, उसके अलावा ये जेरूशलेम क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूसिफिकेशन के बाद बहुत लोग मानते हैं कि जब उनको क्रूसिफाई किया गया, बैथलहम एक सिटी है जन्म के बाद, वो लेके आए बैथलहम में। फिर से आप रिसरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यीशु का जन्म भी हुआ था वापस। तो ये होली प्लेस है और इसके ऊपर रिलीजियस वॉर, इसलिए कन्फ्लिक्ट आप देखेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट, और कुछ लोग कॉन्स्पायर कहते हैं कि ये यूएस का ब्रेन चाइल्ड है, इसराइल को वहां एस्टैब्लिश करना। क्यों? स्पाइकमैन की जब थ्योरी आई, रीमलैंड कॉन्सेप्ट 1944 में, तो रीमलैंड कहते हैं इस रीजन को, इसके पहले एक हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट आया था। मैकेंडर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूके में, उन्होंने बताया था कि यहाँ जो रशिया का साइबेरियन रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल रीजन है। यहाँ इंटर करना किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ आर्कटिक सी जो फ्रोजन रहता है, पैसिफिक से भी ये दूर है, अटलांटिक से भी दूर है, इंडियन ओशन से भी दूर है, 3 साइड से पहाड़ हैं, यूराल माउंटेन, कॉकसस माउंटेन, जैग्रोस माउंटेन, हिमालयाज, हिंदू कुश, कुनलुन शान, कोलियामा माउंटेन, जुगजूर, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी माउंटेन्स विच सराउंड दिस लैंड, दिस इज नोन एज हार्टलैंड एंड पाइवोट एरिया, वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट। उन्होंने कहा कि दोज हु कंट्रोल ईस्टर्न यूरोप कंट्रोल द हार्टलैंड, दोज हु कंट्रोल द हार्टलैंड कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड आइलैंड। उसने पूरे इस रीजन को, अफ्रीका और एशिया और यूरोप को वर्ल्ड आइलैंड का, एंड दोज हु कंट्रोल द वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल द इंटायर वर्ल्ड। और जो इस एरिया को कब्जा कर लेगा, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के नदर्न पार्ट को, ये पूरे दुनिया को कब्जा करने की शक्ति रखता है। दिस इज द हार्टलैंड थ्योरी। इस हार्टलैंड थ्योरी जिसमें लैंड पावर को बहुत प्रोमिनेंट दिया गया, वो लैंड पावर रशिया जिसके कंट्रोल में ये था, यूएसएसआर पहले कहलाता था। अब इस मैकेंडर के कॉन्सेप्ट के बाद यूएस और यूरोपियन पावर कॉशियस हो गए, कहीं ऐसा हो गया तो यूएसएसआर डोमिनेट हो जाएगा, कम्युनिज्म स्प्रेड हो जाएगा, तो एक वॉर शुरू हो गई, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म। यूएस ने कई सारे मिलिट्री अलायंसेस डेवलप कर लिए, अलायंसेस लाइक नाटो, सेंटो, सीटो, जिसके बारे में आप अभी भी पढ़ेंगे। देन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ओके, तो आप क्या देखते हो, ठीक है, जस्ट सेकेंड प्लीज। Are you audible now? Yes, sir. Now, opposite to this heartland theory, another theory evolved which is called रीमलैंड concept. एक नया स्पाइकमैन थे, फिलोसफर थिंकर, उन्होंने पॉलिटिकल थिंकर ने रीमलैंड। रीमलैंड किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो हार्टलैंड है, जो आप लैंड को बता रहे हो कि ये कंट्रोल करने से आप वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे और पूरी दुनिया कंट्रोल में आ जाएगी, बोला ऐसा नहीं। इस हार्टलैंड के सराउंडिंग का ये जो रीजन है, द रीजन ऑफ वेस्ट यूरोप, द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट, द रीजन ऑफ इंडिया, द रीजन ऑफ चाइना, ये जो रीजन है विच इज क्लोज टू द सी, दिस इज नोन एज रीमलैंड अकॉर्डिंग टू स्पाइकमैन। बोला ये जो रीजन जिसको कि सी का भी एक्सेसिबिलिटी है, लैंड भी है, ये रीजन मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हार्टलैंड। अगर रीमलैंड को कोई कंट्रोल कर लेगा तो वो पूरी दुनिया। A few people stated that US, keeping in mind this रीमलैंड concept, asked to establish the Israel. क्यों?
क्योंकि इजराइल का पोजीशन देखो रीमलैंड एरिया में, उसको लगा कि यूएसएसआर को कंट्रोल करना है, कम्युनिज्म को कंट्रोल करना है, रीमलैंड को कंट्रोल करना है, तो अब पावर टशल स्टार्ट हो गया। यूएसएसआर चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध बनाऊं, पावर ब्लॉक्स बनने लगे मैंने, और ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा तेजी से की थ्योरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ 1904 में आई थी पहली थ्योरी मैकेंडर की। सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उन्होंने रिवाइज किया थ्योरी, स्पाइकमैन की थ्योरी 1944 में आई, 45 इंड हुआ है वर्ल्ड वॉर, 39 to 45। अगर देखोगे तो कैसे ये थ्योरीज इन्फ्लुएंस करती हैं जियोपॉलिटिक्स। अब यूएसएसआर चाहता है ज्यादा से ज्यादा देश कम्युनिस्ट कंट्रीज बने, वो रिलेशन अच्छा बनाना चाहता है। ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद नॉन अलाइंड चलाता है, क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, इसी पावर टशल में न्यूट्रल रहना चाहता है भारत। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश यूएस के साथ खड़े हो गए, कई देश रशिया के साथ खड़े हो गए, जो आज रशिया है पहले यूएस। बट उस पावर टशल में यूएस कुछ हद तक जीत गया, क्योंकि उसने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया, ब्रेक करने में सफल रहा। तो आप देखते हो कि कई सारी थ्योरीज आती हैं, और वो थ्योरी जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर वर्ल्ड को अफेक्ट करती। अभी भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारे कॉलमनिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के आइडियाज पढ़ते हो, आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बातें सुनते हैं, यूएस की, यूके की, इंडिया की, चाइना की, के स्टेटमेंट को कोट करना सीखो, बाद में वही थ्योरीज समझ में आएंगी, इसने क्या कहा। हु यूज द वर्ड गुड तालिबान, हु यूज द वर्ड बैड तालिबान। हिलेरी क्लिंटन का नाम आएगा जब गुड और बैड तालिबान। तो व्हेन यू आर लर्निंग द, व्हेन यू स्टार्टेड रीडिंग, यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू कोट इन एग्जामिनेशन। जब आप लिखोगे आपको करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई given by political leader, those who are ruling right now, is very very important. The Biden is giving some statement, if the PM is giving some statement, the PM of India, the Secretary of State of US is giving something which is raise the issues somewhere in the world, that issues must, आपको देखते रहना पड़े, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स में। The international political system after the Second World War, say UNO has developed to manage the trades, WTO as you know is developed, funding World Bank है, IMF, कई सारे नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UNHCR, कई सारी चीजें इवॉल्व होती, एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है जिसमें कई नेशन पार्टीज होते हैं, कई देश। अब नेशन, स्टेट, कंट्री, सब वर्ड पॉलिटिकल साइंस अलग होते हैं, वो समझना है, के बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर है नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, एक राष्ट्र, फिर राष्ट्र का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद लोकल और रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। So there are three different hierarchy, international or regional. So there are three political system which exist at present. When you visualize, when you observe the global order, you find three hierarchies. Okay. And at every hierarchy there is a rule. UN के अपने charter हैं. UN has maintaining their own rules. उसकी अपनी सेक्रेटेरिएट है, उसकी अपनी मीटिंग्स होती हैं, समझ में आ रही है बात है। तो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस उनके अपने हैं, उनकी गवर्निंग यूनिट है, वेदर इट इज एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और एट रीजनल।
Okay. Now, when you look at early political system, may have developed partly in response to political condition. बोला ये जो सिस्टम डेवलप हुए, ये जो हायरार्की, वो एक दिन में नहीं डेवलप हुई. अभी तो मैंने इतिहास बताया ना, लोग घूमते थे, फिर वो धीरे धीरे शट, फिर टेरिटरीज डेवलप की, टेरिटरी के बीच में कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुए, एक टेरिटरी को सब्जुगेट करना, जीतना शुरू की, एक्सपैंड करना, पता चला कि कई सारे साम्राज्य बड़े बन गए. एक समय ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड को कंट्रोल करना शुरू किया था. इस तरह से आप देखते हो इन डिफरेंट एजेस द डिफरेंट थिंग्स हैज बीन. आप एंशिएंट पढ़ते हो अशोकास के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है. उसी तरह संगम से अगर आप संगम चलो, चेरस, how they spreaded their kingdoms, have learned. In India, outside India, there are so many, okay, rulers. तो क्या है कि जो अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो किया, प्रोबेबली द थिंकर्स स्टेटेड एट फिजिकल कंडीशन के कारण ग्रो. जैसे एग्जाम्पल है इजिप्ट का. इजिप्ट यानी मिस्र. इजिप्ट यानी अर्ली इजिप्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज, इट इज अ डेजर्टिक एरिया, लाइज इन सहारा. ओके, सो लार्ज पार्ट ऑफ द इजिप्ट इज डेजर्ट. वहां पर क्या है, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट इज द नाइल. So the people jointly effort, cooperated, and this cooperation needed. Why it needed? Cooperation among the people in the Egypt because of physical condition, desertic condition. Dry realm है, arid area है, survive करना है तो cooperate करना होगा. Cooperate क्यों किया? To harness the Nile flood for productive agriculture. फ्लड क्या है? ओवर स्पिलिंग इफेक्ट ऑफ द रिवर. रिवर में जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़कर पानी जाता है, फ्लड कहता है. रिवर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा पानी आ गया तो किनारों में आ जाएगा, ओवर स्पिल इफेक्ट हो जाएगा. जैसे ग्लास टैप ऑन तो ग्लास भरने के बाद पानी, इसी तरह से फ्लड. अब लोगों के दिमाग में आया कि अच्छा ये फ्लड में क्या होता है, पानी आया, वॉश आउट किया, निकल गया, उससे आपके लैंड भी खराब हो गई, आपका लॉस भी होता है. इसी फ्लड के वाटर को मैनेज करना शुरू किया इजिप्शियन ने. बोला क्यों ना वाटर को हम लोग कंटेन कर ले, मॉइस्चर लैंड की मेंटेन होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा. और लोगों ने स्टार्ट कर दिया. उसके लिए एक इंसान के बस की बात नहीं थी, उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया. द पीपल स्टार्ट, अ न्यू सिस्टम इवॉल्व. So when you look at the early political system in the country which is evolved is due to the physical condition of that area. वो वहां के फिजिकल कंडीशन के कारण, प्रोबेबली ऐसा थिंकर्स मानते हैं कि जब लोगों ने कोऑपरेट करके एक पॉलिटिकल यूनिट्स बनाए, उसके कोऑपरेशन के पीछे रीजन देखोगे तो वहां का कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वहां के भौतिक कारक, क्लाइमेट, लैंड, टोपोग्राफी, रिलीफ. इसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़कर काम करना शुरू किए और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ. उसमें उन्होंने रूल्स बनाए कि कैसे हम करेंगे, किसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कैसे शेयरिंग होगी, और इसी तरह से सिस्टम ग्रो किया, एक नई यूनिट ग्रो की. ठीक है. और ऐसा अर्ली किसी भी आप पढ़ेंगे देश का इतिहास तो उसमें आपको ऐसा ही दिखेगा. ड्यू टू फिजिकल कंपल्शन दे कम्स टुगेदर. The tribes of the dry realms comes together. The tribes of Mongolians together. The people of India is jointly work because of physical condition. Operations required. मैं कहा था ना, लोग सेटल होने लगे तो खेतों को बचाने के लिए वो मिलकर काम करने लगे, परिवार बचाने के लिए वो मिलकर अकेले नहीं कर सकते. तो a political system grew. Eventually, the kingdoms of the upper and the lower Egypt were combined under one ruler. Upper और lower Egypt
नदी में अपर किसे कहते हैं, जहां से नदी का ओरिजिन होता है। लोअर किसे कहते हैं, जहां नदी जाकर ओशन कर। नाइल की ओरिजिन लेक ताना, इथियोपियन हाईलैंड, और विक्टोरियन लेक, लेक विक्टोरिया, तंजानिया केनिया बॉर्डर, दो जगह से व्हाइट और ब्लू नाइल मिलती हैं, दोनों खार्तूम में मिलती हैं, वहां नाइल रिवर बन के चलती है। तो दो हेडलैंड ट्रिप है उसकी ट्रिब्यूटरीज, आगे जाकर नाइल। तो मैंने क्या कहा कि लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट में अलग अलग किंगडम, इन्होंने भी कोऑपरेट किया और एक यूनिट के अंदर मिलकर काम, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, अदरवाइज ये सर्वाइव ही नहीं। दे फॉल विक्टिम ऑफ द अदर किंगडम्स, इनको दूसरे जीत लेते। So I had given you a glimpse ki how a political system develop, how a political space grow, who has given the concept of Levenstrom, how the organic theory evolved, how the theory like organic as well as heartland and dreamland affect the mindset of the people, the monarch, the head of the governments, how they chose to reduce the conflict, how the conflict begins within the powers. You can understand in the light of this. In every subject you have to learn theory, whatever. पॉलिटिकल साइंस में भी ये थ्योरीज, जहाँ तो मैं ज्योग्राफी डिस्कस कर। नाउ व्हेन यू लुक एट नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, हम लोग नेशनल पॉलिटिकल इस हायरार्की लेवल को देखें। अब इसमें वर्ड है नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पहले नेशन इन हिंदी कंट्री को देश, शब्दों का चयन ठीक से करना। बोला राष्ट्र क्या होता है, व्हाट इज नेशन। बात है। So the question is what is nation? यार लगा कि ये क्लास देश के बच्चों की इम्पोर्टेंट हो। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती इन कॉन्सेप्ट्स में, वो अच्छा ऐसे भी नहीं लिख पाते। हमेशा ऐसे अच्छा लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे तभी आप ऐसे। और पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ते होगे ना, पैराग्राफ राइट क्या होता था, एक पैसेज दिया होता था, उस सेंटेंस हाईलाइटेड होता था और वो एक डिफरेंट, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाला नहीं। एक शब्द लिखा है, वाक्य लिखा है और इसको आपको एक्सप्लेन, दैट इज पैराग्राफ राइट। वो बहुत संक्षिप्त विवरण में आप फैक्ट्स भी डाल देते हैं, एग्जाम्पल, बहुत नैरो व्यूज है, संक्षिप्त जानकारी में निबंध कहते हैं जिसपे कोई बंधन नहीं, अप्रोच एनालिटिकल होता है। मैं आपको एनालिसिस लिखनी हो, उसके लिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच, स्पेक्ट्रम ऐसे में सबके
वो एक आर्ट है, वो स्किल धीरे धीरे आपको बहुत सारे होनी चाहिए, तो उसका आकलन को सोच सकें, आ सकें। फिर आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि फिलॉसफी भी इम्पोर्टेंट। ऐसे में फिलॉसफिकल अप्रोच भी होता है, आपको हर सब्जेक्ट की फिलॉसफी भी थोड़ी थोड़ी समझ आनी चाहिए, यू कैन राइट अ बेटर एज। तो जब तक आपको फिलॉसफी थोड़ा नहीं पता होगा, और आजकल तो तुम देख रहे हो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसे आता, तो कंप्लीट फिलॉसफी बेस्ड हो विदाउट फैक्ट्स। तो फैक्ट्स इसके एनालिसिस करो साथ में, और उसके साथ साथ यू कैन नॉट लेफ्ट द एथिकल एंड मोरल पार्ट, आपको वो भी हाईलाइट कर, तो उसकी भी समझ होनी। अब सेपरेटली सिलेबस में डाल दिया है पहले, यानी वो नॉलेज भी जो आप एथिक्स और इंटीग्रिटी पेपर 4 पढ़ेंगे ना, उसकी आप इंक्लूड करेंगे। जैसे होता है कि क्या क्या सरोगेसी अलाउ करना चाहिए, वहां एथिकल क्वेश्चन, क्या एबॉर्शन अलाउ करना चाहिए, एथिकल क्वेश्चन भी आ गया। क्या होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करना चाहिए, सेम केसेस आ गया, एथिकल और मोरल। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एथिकल क्वेश्चन। जब तक इन सारी चीजों का आपके ऐसे में अमलगमेशन नहीं होगा, आपका ऐसे अच्छा नहीं। या जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं डेवलप होगी, जिस दिन तक कि आप इन चीजों को जोड़ सकें सकें सकें, ऐसे कर। सबसे पहला कंडीशन है ऐसे लिख को समझ डेवलप की, अब एवरेज के बाद थोड़ी फिलॉसफी भी समझिए। इसीलिए थिंकर्स और थ्योरीज, आप तो अपने ही विषय के थिंकर्स पढ़ नहीं पाते, थॉट समझ नहीं पाते, विषयों का क्या ही एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी जैसे गांधी की फिलॉसफी अहिंसा पर क्या है, गांधी की फिलॉसफी महिला के ऊपर क्या है, गांधी की फिलॉसफी काउंटरवेन के ऊपर क्या है, तो आप शब्द इस्तेमाल करते हो के लिए वो क्या कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब है कोर आइडिया, व्यक्ति के बारे में आप पढ़िए और उनके कोर आइडियाज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप वो लिख सकते। पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, महावीर को पढ़िए, है ना। आप राम के कैरेक्टर से निकालिए कि क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो आप ऐसा देखते हैं, आप देखिए ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, वेस्टर्न फिलोसोफर, अभी जैसे मैंने मैकियावेली को, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट, ऐसे आप पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है डेट इज बर्डन, आप कर लेते हो पता नहीं कैसे। पीपल आर नॉट चेरिशिंग ट्राइंग द इंफॉर्मेशन, आपकी बहुत बातें हुई। तो फिलॉसफी का मतलब आप फिलॉसफी सुन के डर जाते हैं, कोर आइडिया समझना, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा आप, शंकराचार्य ने धर्म के ऊपर क्या कहा, सोशल थिंकर्स हैं जैसे मार्शल का क्या ओपिनियन, हॉब्स क्या ओपिनियन। तो कम से कम 10-12 थिंकर्स इंडियन और वेस्टर्न, उनकी एक डायरी बना लीजिए, किसने सिटीजनशिप के बारे में, किसने सेक्युलरिज्म के बारे में, रीजन के बारे में क्या बातें कहीं, एटलीस्ट लिख तो लो। वैसे तो मैं जब पढ़ाता हूँ, आप पढ़ेंगे तो
पाया जाता है, बट वो पढ़ा तो पढ़ा, वहाँ रह गया, तो कहीं एक जगह तो आपने फिल्टर किया, फिर आप कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे जिंदगी में जब जरूरत पड़ेगी। समझ ही नहीं आएगा कि उसको भी करना था। अब देखो यहाँ आओ, इस सब्जेक्ट को पढ़े, नेशन पढ़ रहे हैं, राष्ट्र क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, कैसे थिंकर्स ने डिफाइन किया नेशन को, क्या पूरे देश में थिंकर्स के बीच में एक ही ओपिनियन है राष्ट्र को लेकर, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब डिस्कशन हुआ तो राष्ट्र शब्द पर विचार किए गए थे कि नहीं किए गए थे, और अगर किए गए थे तो क्या सोचा था, क्या कहा था अलग अलग थिंकर्स ने। ऐसे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, हमारा दायरा लिमिटेड होगा बताने का, ठीक है, क्योंकि उतना ही समझ जाएं जितना हम एक्सप्रेस। नाउ according to some thinkers, the nation is a group of people with a sense of oneness, okay, among the ethnic. So nation is what? Nation means the group of people having the sense of belongingness, sense of oneness. Then we called it nation. जब आप जर्मन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जर्मन्स जो पीपल हैं, जैसे अभी अभी आप जब पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था एक स्टोरी, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अब देखो, अभी तुमने देखा एक एक वीडियोस वायरल हो रहा है, गाजा रीजन में पैलेस्टाइन सपोर्टर्स जो हैं वो हमास के जो शूटर्स थे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि नहीं वो वीडियो? हमास के जब लोग इंटर किए इजराइल में, इस रीजन में, जो गाजा के रीजन में जिसको कैप्चर कर रखा है इसराइल ने, वहां पर जब उन्होंने कैप्चर कर लिया इजरायली फोर्सेस के व्हीकल्स को, तो जो पैलेस्टाइनियन सपोर्टर्स हैं वो गाड़ियों पर बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ। इसका मतलब क्या है कि डिस्पाइट अ पीपल or a group living in a particular region or territory but supported the other territory, try to understand, there is no feeling of one. सर ईरान भी कर रहा था। हाँ हाँ, ईरान कर रहा था तो वो तो अपनी टेरिटरी के अंदर कर रहा था, वो एक अलग बात है कि ईरान में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ या ईरान में भी लोग गली में आगे सपोर्ट करने लगे, वो एक डिफरेंट बात है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सेम जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, यानी इजराइल के ही एक रीजन के अंदर, वेस्ट बैंक से वो इंटर किया, रीजन में आए, उन्होंने कैप्चर किया कई सारे व्हीकल्स और कई सारे आर्मी पर्सनल को और लोकल पीपल को वो कैप्टिव बनाकर ले गए, कैप कर लिया, ठीक है। इस दौरान यहीं के लोग जो इसी जियोग्राफिकल टेरिटरी के हैं, कहने का मतलब है कि जो रीजन इजराइल में है वहां के लोग तो इजरायली ही कहलाएंगे ना। अगर इंडिया के रीजन में है और इंडिया ही कहलाएगा ना, लेकिन अगर इंडिया के रीजन में एंड फ्यू पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग सम अदर कंट्रीज और द फिलॉसफी ऑफ सम अदर वन, जैसे भारत के ही कुछ लोग खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। आपने सुना ना अभी कनाडा वाला इश्यूज रेज हुआ तो सुना आपने, देखा दिल्ली में ही एक फ्लाईओवर के नीचे पेंट किया हुआ था खालिस्तान के बारे में। पढ़ते नहीं हो ना आप लोग, पढ़ेंगे तो पता लगे। अब क्वेश्चन ये है कि विद इन द टेरिटरी इफ द पीपल आर रेजिंग द स्लोगन अगेंस्ट दैट टेरिटोरियल रीजन, it means the concept of nation is weak. What is the nation? When the people having the sense of oneness, belongingness, brotherhood, उसको कहते हैं राष्ट्र, पॉलिटिकल इसमें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन।
despite diversity, despite ethnic diversity, despite religious diversity, despite the caste and linguistic diversity in that region, if the person having the sense of belongingness, the sense of oneness, then we call that geographical region or territory as, then we can. अब देखो कई सारे ऐसे हैं, जर्मनी का डिवीजन हो गया, अभी देखेंगे आप वर्ड सुनेंगे, आपने कभी सुना है बिस्मार्क का नाम? यस सर। इसने किस देश को यूनिफाई किया था? यूनिफिकेशन ऑफ बिस्मार्क ने किस, हाँ जर्मनी सर। जर्मनी। आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसी तरह आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी पढ़ेंगे, कैवॉर को पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी को पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन मतलब क्या हुआ? कई ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया था जहां जर्मन स्पीकिंग थे, जहां इटालियन स्पीकिंग थे, दे आर सपोर्टिंग, उसको मर्ज कर ली। अब यहां के लोग डिस्पाइट दे आर फार अवे फ्रॉम हियर बट हैविंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, the people are here but they are having the sense of belongingness. A geographical area in which the people are living with the sense of oneness and belongingness, then and there we called it that is. But if in a geographical territory or area despite governed by the people, but the people those who are living having no sense of belongingness, that is not a political geography, political. Am I clear to all of you? आया क्या? What is nation as per the concept? Yes, sir. यस सर। That's why I had mentioned the nations generate identity and loyalty. आपसे पूछा जाता है आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप कहते हो इंडियन, भारतीय हैं। It shows the sense of belongingness despite you are living in Odisha, Andhra, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Bengal, UP, Punjab, Haryana, whatever. Okay. Why? Despite all this diversity, we all are Indian, having sense of oneness. So the nations generate identity also. Nation generate loyalty also, loyalty towards that land, loyalty towards, okay, they are named groups who share common histories, the common myths, even common culture, economy and rights also. So the people of the nation share similar history. Okay. The similar myths, some mythological histories are there, some myths are there, we are carrying forward it. Okay, similar culture, economy as well as rights. The ethnic groups also have common ancestry and solidarity within the group, but they do not engage in the politics of nationalism. बोला एथनिक ग्रुप में भी सिमिलर एंसेस्ट्री होती है, एथनिक ग्रुप को भी क्या नेशन कह सकते हैं? बोला नहीं कह सकते। एथनिक ग्रुप में भी सॉलिडारिटी होती है, हैव कॉमन एंसेस्ट्री, उनमें भी कॉमन एंसेस्टर हैं, इसलिए उनके स्किन कलर, उनके कस्टम्स, रिचुअल्स एक होते हैं, सॉलिडारिटी होती है विद इन द ग्रुप, बट दे डू नॉट इंगेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म, बट उसमें राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स नहीं इवॉल्व होती। ठीक है, एथनिक ग्रुप इज डिफरेंट देन द नेशन, नेशन हैविंग द फिलॉसफी ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो, उसमें
एक वाद भी डेवलप होता है, राष्ट्रवाद, ठीक है। Americans are encouraged to sing the national anthem rather than the state anthem in order to become more integrated with the idea of nation, even though it should be called the state anthem. USA is an example of true federal state, and there is clear-cut distribution of power between the provinces of USA as well as the center. यूएस में क्लियर कट डिवीजन है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का एग्जाम्पल है, बट फिर भी मैंने क्या कहा, और वहां पर आप देखेंगे स्टेट सिटीजनशिप और नेशनल सिटीजनशिप भी है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप। उसके बावजूद वहां के लोग क्या गाएंगे, बोला नेशनल एंथम गाते हैं, क्यों? टू शो द सॉलिडारिटी, टू शो द सेंस ऑफ वननेस, to show the brotherhood, to show the belonging. That's why we can say that, इसलिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, बट इस संयुक्त राज्य के अंदर, इस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो एक नेशनल एंथम, और अलग अलग स्टेट के अपने एंथम हैं, बट वो नेशनल एंथम गाते हैं टू शो द सॉलिडारिटी, to show the oneness. हमने भारत में ऐसा कोई राज्य का सॉन्ग नहीं डेवलप किया, हमारे राष्ट्रगान अलग हैं, एक ही है, वो राष्ट्रगीत भी एक ही है। द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग इज वन। यूएस का कंडीशन अलग है, बट ऐसा क्यों उन्होंने किया? टू जनरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ के, ठीक है। अब देखो कैसे इसकी ओरिजिन हुई है शब्द की, वर्ड कहां से आया। Few thinkers believes that this word is derived from Latin word natio. लैटिन में एक वर्ड है natio, NATIO. What is the meaning of it? Represent children of the same birth or also a human group of the same origin. From here the word nation derive. का मतलब क्या होता है? natio का children of same birth और the human group of same origin, लैटिन में। The people of same geographical area having the sense of belongingness, oneness are called nation. अब ये देखो यहीं से ओरिजिन हुआ, लेकिन टर्शियो का कहना है नेशियो इज यूज्ड फॉर पीपल। यह शब्द लोग के लिए इस्तेमाल होता है। While the old French people stated that the nation is derived from the word nation, N-A-C-I-O-N. It is a old French word, nation. कुछ फिलोसफर मानते हैं nation शब्द से नेशन बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बर्थ, नेसेंस। The place of origin, which is term originated from the Latin word natio, literally means birth. So basically, if someone is asking you ki from which word it is derived, you simply stated that the word nation is derived from the Latin word natio. Natio means the birth of a children, okay, the children of the same birth or also have the human group of same origin. एक ही मदर के चाइल्ड हैं, ठीक है, या तो द चिल्ड्रन ऑफ द सेम बर्थ और ऑल्सो हैव ह्यूमन ग्रुप ऑफ सेम ओरिजिन। वहीं से ये वर्ड डेराइव हुआ नेशन। क्या शो करता है? सेंस ऑफ बिलोंग। अब देखिए आप भारत में भी देखते हैं मदर अर्थ का कॉन्सेप्ट है मातृभूमि। क्यों? इसी लैंड से में सबकी ओरिजिन हुई। उसी तरह लैटिन वर्ड में है एक ही मदर की संतान, उसके लिए वर्ड है नेशन। कॉन्सेप्ट बहुत कुछ मिलता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का, और ये मातृभूमि मदरलैंड का कॉन्सेप्ट मॉडर्न
हिस्ट्री का नहीं है, एंड पास्ट वे टू लर्न द वेदास, द वैदिक हिस्ट्री, दिस कॉन्सेप्ट इवॉल्व। अब देखो, तो मैंने रूट वर्ड समझा दिया कि कैसे ये वर्ड इवॉल्व हुआ। अब मैं थोड़ा एक दो डेफिनेशन बताता हूं थिंकर्स के कॉन्सेप्ट, हाउ दिस टर्म इवॉल्व अकॉर्डिंग टू एंथनी डी स्मिथ। According to Anthony D. Smith, what is nation? How he defines? He defines nation as a cultural political communities that have become conscious of their autonomy, unity and particularity. क्या कहा स्मिथ ने? स्मिथ ने कहा राष्ट्र क्या है? बोला एक कल्चरल और पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये एक सांस्कृतिक और राजनीतिक समुदाय है, ठीक है, that have become conscious of their autonomy, जो कि अपनी ऑटोनॉमी चाहता है, यूनिटी चाहता है, और जिसके अपने पर्टिकुलर वेस्टेड मोटिव या इंटरेस्ट, उसको उन्होंने राष्ट्र कहा, उसे उन्होंने नेशन कहा। एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां लोग रह रहे हैं वो एक ही कल्चरल पॉलिटिकल कम्युनिटी के हिस्से हैं, यानी उनकी कल्चर, उनका पॉलिटिकल सिस्टम सिमिलर है, और उनके जो मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो एक हैं, वो यूनाइटेड हैं, दे वांटेड यूनिटी एंड आल्सो ऑटोनॉमी। The consensus among scholars is that the nations are socially constructed. अब यहां स्कॉलर में कंसेंसस है, डेफिनेशन अलग अलग है, बट कंसेंसस एक बात के ऊपर है स्कॉलर में, क्या नेशन क्या है? बेसिकली इट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड यूनिट, हिस्टोरिकली कंटिजेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनली फ्लेक्सिबल। You must keep in mind these three words: socially constructed, historically contingent, they have the similar history, organizationally flexible, it change with the time. So this is the very crucial term, socially constructed, historically contingent, organizationally flexible. What the nation? The very famous political thinker Max Weber, how he defined the nation? According to Weber, the nation, Alfred Weber in industrial geography is different. This is Max Weber. Max Weber defined the nation is understood as a status group united by common historical memory, fighting for prestige of power and culture with other nations. They are ready to fight to shape their power, to shape their culture to the other nation. They have sense of belongingness. They understand a status group united by the common historical memories. This is the opinion. The next class tomorrow I will explain further the opinions of other thinkers. Then I will give you the concept of a state. और फिर मैं बताऊंगा नेशन स्टेट ज्वाइंटली किसे कहते हैं, फिर फेडरलिज्म पढ़ाऊंगा, फिर बाउंड्री, फिर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द जीएस कैंडिडेट. यू मे ज्वाइन. और चलो फिर हैव अ नाइस टाइम. सर ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, हिस्टोरिकली कंटिजेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनली फ्लेक्सिबल समझ रही है. इसको समझा दूंगा कल, अभी चलूंगा तो समझा. सर कल क्लास कब होगी? 8 बजे हो, 8:20. ओके सर.